Assalamu alaikum class 7. Welcome to your lecture of English. It's our lecture number 5 and today is 23rd April 2021 Friday. Students, as we have done in our previous lectures, indefinite tenses, active passives gradually. So in this video I'm going to revise the whole concept. Okay. So first of all, before revising the whole concept, I would like to repeat the concept of indefinite tenses. Present indefinite tense is a tense in which we have used first form of verb and s and es with that form of verb according to the pronouns. Okay. Then in its negative and interrogative we had used helping verb do and does. Okay. If we talk about past indefinite tense, we have used second form of verb in it, and in its negative sentence and interrogative sentence we have to use helping verb did, and with did we all have to use first form of verb. Okay. And if we talk about future indefinite tense, we will use will and shall, a helping verb, with all of the three types of sentences: affirmative, negative and interrogative, and along with first form of verb. Okay. So let's start all of the three tenses, active passives. So here is the whole crux of active passives indefinite tenses. I had written here rules. Okay. So I had told you again and again that there are three main rules that you all have to use in every type of active passives. Okay. Whatever the sentence is. Okay. And the three main rules are these: always use third form of verb, use of by and interchange position of subject and object. Subject, I had told you that the subject is the doer of the sentence, and the object is the thing or a person that on which the subject is applying the work. Okay. So we all have to use third form of verb while changing a sentence into passive voice. We all have to use by. We all have to interchange the position of subject and object. Okay. If we talk about present indefinite tense, we have to use the helping verbs is, am and are with these three rules. Okay. For example, she washes the clothes. Okay. It's an active sentence. So if we have to change it into a passive voice sentence, we all have to apply all the four rules, these rules and the helping verbs. Okay. She washes the clothes. So we have to make it passive voice. Clothes are washed by her. Okay. क्योंकि क्लोथ्स हमारा जो सब्जेक्ट है वो उस हम यहाँ पर आप देखिए इंटरचेंज हुई है पोजीशन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की. ठीक है. तो जब हमारा क्लोथ्स जो है वो क्योंकि प्लूरल है और वो जब सब्जेक्ट बन जाएगा तो उसके साथ हमने आर यूज़ करना है. इफ़ हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो हम इज़ यूज़ करते, और अगर आई होता तो हम एम यूज़ करते. ओके. सो वी हैव यूज्ड आर हेयर. क्लोथ्स आर washed, we have used third form of verb. by, she को हम change कर देंगे her में. clothes are washed by her. And let us talk about its negative sentence. Okay. She does not wash the clothes. So अब इसका हम passive बनाएंगे. Okay. clothes are not washed by her. अब इसमें भी हमने इंटरचेंज पोजीशन किया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया, बाय यूज़ किया और साथ में हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया. अब इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब हम स्टार्ट में ले आएंगे. ओके. डज द क्लोथ्स वॉश बाय हर, डू द क्लोथ्स वॉश बाय हर. ओके. सो इसको अब हम जो है अब इसको पैसिव बनाएंगे तो ये कैसे बन जाएगा? आर द क्लोथ्स वॉश्ड बाय हर, और साथ में क्वेश्चन मार्क. अंडरस्टूड. ओके. नाउ टॉक अबाउट पास्ट इंडेफिनिट टेंस. उसमें भी हमने यही करना है. इन थ्री रूल्स के साथ हमने सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है, बाकी सब सेम रहेगा.
ओके अब इसी सेंटेंस को अगर मैं पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर दूं तो क्या होगा, ये क्या बन जाएगा सेंटेंस। हमने पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, ठीक है। तो शी वॉश्ड द क्लोथ्स, ओके, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस बन गया। अब हम इसको चेंज करेंगे इनटू अ पैसिव वॉइस सेंटेंस, ओके। सो ये क्या हो जाएगा, क्लोथ्स वर वॉश्ड बाय हर। इसमें हमने पोजीशन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की चेंज की है, हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय हेल्पिंग वर्ब सब कुछ यूज़ किया। इसके नेगेटिव में क्या होगा कि शी डिड नॉट वॉश क्लोथ्स। मैंने आपको बोला था जब इसके नेगेटिव में डिड लगाएंगे, बिकॉज डिड इटसेल्फ इज़ अ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सो दैट इज़ वाई हमारी मेन वर्ब जो है वो फिर फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगी। सो क्या सेंटेंस बनाइए, शी डिड नॉट वॉश द क्लोथ्स। तो अब इसको पैसिव बनाएंगे, क्लोथ्स वर नॉट वॉश्ड बाय हर, ओके। इसमें भी हमने चारों रूल्स अप्लाई कर दिए। और इसका इंट्रोगेटिव अगर बनाएं तो क्या होगा, डिड द क्लोथ्स वॉश बाय हर। अब इसको पैसिव बनाते हैं, वर द क्लोथ्स वॉश्ड बाय हर, ओके। सो ये हमने पास्ट इंडेफिनिट को भी चेंज कर लिया। नाउ कम टू वर्ड्स फ्यूचर इंडेफिनिट। अब इस फ्यूचर इंडेफिनिट में भी इन तीन रूल्स के साथ हम लोगों ने विल बी और शैल बी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, ओके। अब इसी सेंटेंस को अगर मैं फ्यूचर इंडेफिनिट में चेंज कर दूँ, जैसे प्रेजेंट में हमने क्या बना था, शी वॉशेस द क्लोथ्स, ओके। तो अब इसको अगर हम फ्यूचर में चेंज करें तो क्या हो जाएगा, शी विल वॉश द क्लोथ्स। अब इसका पैसिव बनाते हैं, क्लोथ्स विल बी वॉश्ड बाय हर, ओके। उसके बाद इसको अगर हम लोग नेगेटिव में चेंज करें तो क्या होगा, शी विल नॉट वॉश द क्लोथ्स, ठीक है। इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे, इसका क्लोथ्स विल नॉट बी वॉश्ड बाय हर। इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, विल हम स्टार्टिंग में ले आएंगे, हेल्पिंग वर्ब बाहर ले आएंगे स्टार्टिंग में। तो क्या सेंटेंस बन जाएगा, विल शी वॉश द क्लोथ्स, ठीक है। सो अब इसको पैसिव बनाते हैं, विल द क्लोथ्स वॉश्ड बाय हर, ओके स्टूडेंट्स। सो इस तरीके से हम लोगों ने ये सारी रेपिटेशन कर ली है जो कि हमने प्रीवियस 3 वीडियोस में ग्रेजुअली प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट के एक्टिव पैसिव्स किए थे। अंडरस्टूड। नाउ हेयर इज़ योर होमवर्क। अब आपने क्योंकि आप लोग पहले ही अपनी कॉपीज़ पर सारे रूल्स लिख चुके हो और सब कुछ ग्रेजुअली आप लोग 1 बाय 1 कर चुके हो, ठीक है। बस द पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज़ कि आप लोगों को मिक्स टेंसेस में भी एक्टिव पैसिव्स करने आने चाहिए। सो दैट इज़ वाई आई हैड डिसाइडेड कि मैं एक अलग से भी आप लोगों को सेंटेंसेस दे दूँ, मिक्स सेंटेंसेस, ठीक है। सो नाउ here are mixed sentences. There are 9 sentences here, and here they are mixed with present, past and future sentences, okay. And you all have to do this work in copy number 2, okay, because copy number 1 आप लोगों ने कल मुझे सबमिट करवा दी है और वो अब मेरे पास है। तो so that is why अब आप ये अपना होमवर्क कहाँ करेंगे, इन कॉपी नंबर 2। कौन सी कॉपी में, कॉपी नंबर 2। मैं यहाँ पर आपके कन्फ्यूजन भी दूर कर देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ, ओके, इन कॉपी नंबर 2, ओके। सो नाउ हेयर आर द सेंटेंसेस। फर्स्ट वन इज़ आई कंपोज्ड एन ईमेल। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको एक टिप देती हूँ, एक ट्रिक बताती हूँ कि आप लोगों ने किस तरीके से चेंज द वॉइस करते हैं और इजी हो जाएगा आप सबके लिए। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने क्या करना होता है, जब आप एक एक्टिव सेंटेंस को पढ़ते हो तो उसमें आपने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब जो हमारी मेन वर्ब होती है उसको देखना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे कंपोज्ड, इट्स सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब से फ़ौरन आपके माइंड में आएगा डेफिनेटली कि ये पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है, और जब पास्ट इंडेफिनिट आपके माइंड में आएगा तो आपको पता लग जाएगा कि आप लोगों ने उन 3 मेन रूल्स के साथ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाना है। अंडरस्टूड। आप सबसे पहले अपने वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को देखा करें, तभी आप लोग मिक्स सेंटेंसेस में ईजीली चेंज द वॉइस कर सकेंगे। आई कंपोज्ड एन ईमेल, ही ईट्स अ मैंगो। नाउ यू कैन सी यहाँ पे फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस लगाया हुआ है, सो दैट इज़ वाई
it is present indefinite. Next is Bashir will help the old man. You can see here the form of verb and helping verb also, it's future indefinite tense. ठीक है, अब ये मैंने आपको बता दिया, बाकी सब आप खुद रिकॉग्नाइज करके और फिर अपनी कॉपीज पर सेंटेंसेस को चेंज करेंगे. He will not write a letter. She does not love her friend. Reporters did not report the news. Do you know him? Will you sing a song? Did he buy a car? ओके स्टूडेंट्स, नाउ हेयर आर 9 सेंटेंसेस एंड ये आप लोगों ने अपनी कॉपीज़ पर करने हैं और ऊपर सिर्फ आप लोगों ने हेडिंग देनी है चेंज द वॉइस इंडेफिनिट टेंसेस. आप लोगों ने कोई रूल्स नहीं लिखने, कुछ नहीं करना, सिर्फ आप लोगों ने कॉपी नंबर 2 पे अपने चेंज द वॉइस करनी है. अंडरस्टूड? ओके स्टूडेंट्स, inshallah I will come with a new lecture on Monday. Okay, till then take care everyone. Allah Hafiz.